માથાનો દુખાવો, માઇગ્રેન પેન, આમ કોઈ કે 100 જાતનો હોય, 150 જાતનો હોય, 200 જાતનો, જાતનો શરીરનો દર્દ હોય, એનો ઈલાજ શું? તો ઉસ્તખદુસ, ગાજવાન અને સોંફ, વરિયાળી, એના રાતને પાણીમાં પલાળી દેવાનો અને સવારે એના ગાળીને પી જવાનો. આનાથી કેટલો માથામાં દુખાવો હોય તરત મટી જાય. આવું છે. આ તો એક ઉપાય થયું ઘરેલું. એને નહીતર આ નહીં મળે ઉસ્તખદુસ, ગાજવાનો, સોંફ, તો મેદાકવાત સાંજે પાણીમાં પલાળીને એને સવારે પી જવાનું. નહીં તો વરિયાળી તો બધાના ઘરે હોય જ છે, એનાથી જ માથામાં દુખાવો સારું થાય. પછી આ મેદાકવાથને ઉકાળો પીવાથી એનાથી માથાનો દુખાવો સારું થાય. મેદા ઇષ્ટિથી યજ્ઞ કરવાથી માથાનો દુખાવો સારું થાય. અને આ જે ડુંગળી છે એનો રસ નાકમાં નાખી દે, એનાથી માથાનો દુખાવો સારું થાય. નહીં તો ઘણા બધા આમ શું છે કે સ્વામીજી યોગ કરવા માટે હવે આ બધું શું શાના માટે આ લઈને બેસ્યા છે બધા. તો આ બાદામ અખરોટ સાંજે પાણીમાં પલાળીને એને સવારે ખાઈ લો, એનાથી માથાનો દુખાવો સારું થાય. આ મેદાવટીથી માથાનો દુખાવો સારું થાય. અને આ તો આદુનો રસ છે અને લીંબુ છે, એમાં મધ મેળવીને ખાવે ને એનાથી પણ આ શિરમાં દુખાવો સારું થાય છે. આટલી બધી વાતો થોડી દેરમાં બતાવી દીધી. આ તો ઘરેલું ઉપાય થયા. મેદાવટી ખાવાથી શિરમાં દુખાવો સારું થાય. આ બ્રાહ્મી ઘૃત 1 ચમચી દૂધમાં પી લો, એનાથી માથામાં દુખાવો સારું થાય. અને ગાયનું ઘી ખાઓ, એનાથી માથાનો શિરનો દુખાવો સારું થાય. તો આ તો થયા ઉપાય. પછી આ બાદામ રોગન, એનાથી માથામાં દુખાવો હોય એ સારું થાય. અને આ જે છે ને કોઈને કફ કોલ્ડીથી થતું હોય ને તો શ્વાસારી પ્રવાહી કે શ્વાસારી વટી કે આ શ્વાસારી ગોલ્ડ ભૂકે પેટેરે જમ્યા પછી કર્ક્યુમિન ગોલ્ડ, એનાથી માથાનો દુખાવો સારું થાય. કોઈ શંખ સવારે ઉઠીને બગાડે, એનાથી માથામાં દુખાવો સારું થાય. શંખ વગાડો, એનાથી માથાનો દુખાવો સારું થાય. અનુલોમ વિલોમ ભ્રામરી ઉદ્ગીત કરે, એનાથી માથાનો દુખાવો સારું થાય. જે પણ કારણથી બહુ જેને ઊંઘ નહીં આવતી હોય ને તો મેદાવટીથી ઊંઘ પણ સારી આવે. સારસ્વતારી અશ્વગંધારીથી માથાનો દુખાવો સારું થાય. ગેસ થતી હોય તો પછી આ તો યોગ તો કરવું જ પડે છે. અનુલોમ વિલોમ ભ્રામરી ઉદ્ગીત સાથે આ મંડુકાસન કરે, એનાથી માથાનો દુખાવો સારું થાય. ગેસ્ટ્રિક સારું થઈ જાય. યોગ કરવાથી ઊંઘ સારી આવે. યોગ કરવાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારું રહે, ઓક્સિજન આખા મસ્તિષ્કને સારું મળે, તો માથાનો દુખાવો મટશે જ. આ એટલે યોગ તો કરવું જ પડશે. દરરોજ એબીપી અસ્મિતા ઉપર હવે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ આપણે યોગ કરાવીએ છીએ. અને જે યોગથી લાભ પામ્યા છે એને તમે સાંભળો તો યોગ કરવાની પ્રેરણા મળે. આપનું શું નામ છે બેન? सुमित्रा कहाँ से हो? पंचकुला से। पंचकुला से क्या फायदा हुआ? मेरे को स्वामी जी सिर दर्द ठीक हुआ। चलो मंडूकासन, पाचन शक्ति ठीक हुई मेरी। हाँ, पाचन खराब था, प्रॉब्लम थी मेरी हाँ ज्यादा, तो वो बार बार पेट में दर्द होता था और डॉक्टर से वो उसके बाद मैंने ये वैक्सीन ली तो मेरा प्रोलैक्टिन बढ़ गया था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई वगैरह कराई, थोड़ी सी वो ब्रेन में पता नहीं क्या दाग सा कुछ बनना था, मुझे पता नहीं। मैं कहा मैंने कुछ नहीं कराना, मैंने तो योग करना है। कपाल भाती किया, अनुलोम विलोम किया और भ्रामरी उद्गीत। उससे मेरी नींद भी 4 महीने मैंने नींद की दवाई खाई, अब नींद की दवाई भी छोड़ दी 4 महीने से। दवाई बंद, कोलाइटिस की आपका प्रोग्राम देखती सुबह सुबह, अब नॉर्मल आ गया गुरुजी 4-5 महीने से। अरे ये इधर मैंने सोचा ये इधर से ताली कौन बजा रहा है? स्वामी जी 6 महीने से मैं इनको कह रही हूँ मेरे को स्वामी जी के पास लेके चलो। बुकिंग लेट मिली मेरे को ना, मैं कहा मैंने एलोपैथिक इलाज नहीं कराना, मैंने स्वामी जी के पास जाना है। अब देखो, हाँ जी। अभी एक बात हो गई, पहले लोग हट करते थे हमें स्विट्जरलैंड जाना, अब स्विट्जरलैंड जाने के लिए कोई नहीं बोलता। नहीं स्वामी जी, मैं यहाँ से अच्छा स्विट्जरलैंड। स्वामी जी मैंने इनको बोला हर 6 महीने स्वामी जी के पास चलेंगे, कहीं घूमने नहीं जाना है। ये ठीक है। तो ये जो है इतना बढ़िया जो है, स्विट्जरलैंड से भी बढ़िया जो है। हाँ जी। ए तेरी पत्नी अब ठीक होगी, क्या इनाम देगा मेरे को? 63 मेंबर बने आते ही हम मेंबर बनेगा। क्या नाम है तेरा? श्रीनिवास वशिष्ठ, पंचकुला हरियाणा से हूँ। श्रीनिवास वशिष्ठ पंडित जी, देखो पूरा सिरोधारा हो रही है, ये भी आनंद में। आपका आशीर्वाद, आपकी मातृशक्ति का आशीर्वाद जिसको स्वामी जी, मैं तो भारत स्वाभिमान जब शुरुआत अपनी बेटी के साथ भी आई थी। हाँ जी, तब से ही जुड़े हुए आपसे। ये जलनेती, सूत्रनेती અને શિરોધારા, એનાથી પણ માથાનો દુખાવો સારું થાય છે શિરોધારા છે। અને ત્યાં બાળકો છોકરીઓ
जड़ नीति सूत्र नीति करी रहा है। चलो पीछे इनको देना तगड़े से भाई। सुभाष जी ये तो मिर्जा पानीपत से आए। क्या फायदा हुआ? ब्रेन हेमरेज होता ठीक हुआ जी। अरे ब्रेन हेमरेज? हाँ जी ठीक कर लिया? हाँ जी ठीक कर लिया। क्या बात है। क्या नाम है? सुभाष तो मिर्जा। सुभाष जी ये जोरदार काम कर लिया। कमर दर्द ठीक है, कमर तो ठीक हो गया, कमर दर्द भी ठीक। ओह ब्रेन हेमरेज तो करना तो पड़ेगा। कितनी कितनी देर के अनुलोम विलोम? आधा घंटा किया। हाँ आधा 1 घंटा करना पड़ता है तो पूरा रिकवर हो जाता है ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस के बाद। बड़ी हिम्मत वाले हो सुभाष भाई। वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, दूसरा सुभाष है। चलो पीछे देना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम माता। मैंने अपना लीवर डैमेज हो गया था मेरा 75% और मैंने 7 साल पहले की बात है और मैंने 1-1 घंटा सुबह दोपहर और शाम को योगा किया। क्या नाम है तुम्हारा? ममता शर्मा, दिल्ली से आई हूँ मैं। और स्वामी जी मेरे पतिदेव ने मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया। ये राकेश शर्मा जी इग्नू में काम करते हैं। अच्छा। और इन्होंने मुझे अलग अलग दवाई अलग अलग उसके साथ में एक्सरसाइज भी करवाई और योग और प्राणायाम भी करवाया और अब मैं पूर्णतः ठीक हूँ। मेरी उम्र 62 साल है इस समय और लोग सबने डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं 2 साल में मर जाऊंगी। तो मैंने अपनी विल भी लिख दी थी। वसीयत भी लिख दी थी कि ऐसे ऐसे मेरी जो है तो प्रॉपर्टी देना। डेथ डेट को एक्सपायर करके आ। चलो अगले देना। धन्यवाद स्वामी। सर्वकल्प नहीं पिया था? सब पिया था सर। हाँ सर्वकल्प भी बड़ा जबरदस्त है। आगे देना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैंने तो आपका योगा फॉलो करता रहता हूँ तो देखता ही रहता हूँ उसको और उसी से मैंने अपनी पत्नी का भी इलाज किया और अपना भी इलाज किया। मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी, एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, नाक बहती बंद हो जाना। हाँ। तो वो मैंने प्राणायाम से ही ठीक किया। अब और कोई बड़ी बीमारी होनी नहीं थी। और अब बच्चों की तरह खुश रहते। पीछे देना जवान बच्चे को। गोमुखासन करो। प्रणाम सर। मैं विनोद कुमार बिहार से वैशाली से हूँ। हम योग से मेरा कंस्टिपेशन और दूर हुआ है और कहने के मतलब दिन में हमको नींद आता था। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें नींद लगने लगता था। तो गाड़ी चलाते चलाते सो गए जी। तो बड़ा खतरनाक मामला। तो अब जो योग और सुबह मॉर्निंग मैंने पूरा करने से हमको बहुत रिलीफ हुआ। नींद जो है वो खत्म हो गई। रात को बढ़िया नींद आती है और दिन में नींद उड़ जाती है। तो इससे फायदा हुआ। और शुगर में का भी हमको 6 साल से शुगर है और अभी हम कल चेक कराए हैं तो खाना खाने के पहले 124 था और खाना खाने के बाद 119 यहाँ हो गया। और 200 से ऊपर रहता था हमको शुगर। और दवाइयाँ बंद है? दवाई अब आज मैम बुलाई है कि देख के हम बंद करें। एलोपैथी के तो बंद कर दिए जी। पीछे देना। ठीक। स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम उर्मिला अरोड़ा है। मैं फरीदाबाद से आई हूँ और मेरे को शुगर थी। यहाँ आके मेरी दवाई बंद हो गई है। और कब से थी शुगर? 4-5 साल से थी। ओहो। और 4-5 दिन से मैंने बिल्कुल दवाई नहीं ली यहाँ पे। कोई दवाई नहीं? और कल 75 थी मॉर्निंग में। धन्यवाद बहुत बहुत। पीछे वाली बहन को देना। स्वामी जी प्रणाम। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आई हूँ। मुझे घुटने में और पूरे बॉडी में बहुत सारा दर्द था। 5 साल से आज मैं झूल रही थी लेकिन आज 3 दिन में मैं पोटली मसाज हुआ है। इससे मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब दर्द कम हो गया? दर्द भी कम हो रहा है, वजन भी कम रहा है मेरा। और सब कितना कमती हो गया? वजन 3 किलो मेरा कम हो गया है। अब धीरे धीरे लगी रहने मेरी जितनी पतली हो जाएगी। जी होगी जी। आपका आशीर्वाद से तगड़ा नहीं होना चाहिए जी। चलो पीछे वाली गुड़िया को देना। वो पीछे गुड़िया मुस्कुरा रही है। तूने क्या पाया बेटा? ओम स्वामी जी। स्वामी जी मुझे 3 महीने पहले पता चला कि मुझे ना माइग्रेन हो गया है। मेरा सर बहुत ज्यादा ना बहुत दर्द करता था। सारा प्रेशर आईज पे आ रहा था। उसकी वजह से मेरे को नींद आनी बंद हो रही थी। मेरे को नींद नहीं आती थी। पूरे प्रेशर में रहती थी। इवन 3 महीने में हर हफ्ते मुझे एक माइग्रेन अटैक आता था। मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती थी। तो मेरे सास ससुर आप में बहुत बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं।
इवन मेरी मदर इन लॉ एथराइटिस पेशेंट है, 4 दिन में यहाँ ऐसे चल रही हैं जैसे बिल्कुल ठीक हो गई हैं। कहाँ है तेरी मदर? वो ये बैठी है अरे, अरे, यहीं अरे। पे। वो ही उनका ही बिलीव था, वो मुझे बोली आप हमारे साथ चलो, बाबा जी का आशीर्वाद लेके कॉलेज आएंगे। में पढ़ रही है, इसकी तो शादी भी हो गई है। हाँ जी। अब इसकी सासू माँ भी अच्छी हो गई और बहू भी अच्छी हो गई। हाँ जी, उन्हीं का बिलीव था कि वो मुझे यहाँ लाई। सासू माँ के पैर दबाना। जी बाबा जी बिल्कुल। दबाना, यहाँ मत आना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो हंसी मजाक की बात है। तो और मेरा यहाँ पे आई हूँ 2 दिन में ही मेरा सारा दर्द गायब, मुझे कोई माइग्रेन अटैक नहीं आया। उसके बाद में मेरे को नींद इतनी अच्छी आ रही है कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। स्वामी जी सच्ची बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। मिलती है। चलो बहुत अच्छा बेटा। पीसीओडी प्रॉब्लम है तो मैं अब यही मम्मी जी को यही बोल रही हूँ 1-2 महीने में ठीक हो कि जाएगी। मम्मी जी बस मेरा ठीक हो जाऊं, मेरा बेबी हो जाए, मैं लिटरली बाबा जी की फोटो अपने रूम में लगा के रोज पूजा करूंगी बाबा जी। एक बच्चा मेरे को देना। बिल्कुल आप ही तो। एक अपने लिए रख मैंने शुरू से ही आपको सुनी हूँ तो मैंने शुरू से यही सोचा है कि मैं, जैसे आप बोलते हो कि बच्चों को भी एक्सरसाइज करानी चाहिए, उनको भी योगी प्राणायाम बनाना कराना चाहिए। तो पीसीओडी 2 महीने में ठीक हो जाएगी बेटा। थैंक यू। एक अपने पास रखना, एक मेरे को दे देना, अपनी माँ को दे देना। मैं दोनों यही भेजूंगी, अरे यही नहीं। पढ़ेंगे, उनको ऐसा ही बनाना है। बिल्कुल ठीक है, उसको देना। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मुझे 5 साल पहले आर्थराइटिस हो गया था और मेरे हाथ बिल्कुल मुड़ने बंद हो गए थे, यानी कि मैं ब्रश भी नहीं कर पाती थी, बहुत रोती थी मैं। इतना दर्द था? इतना दर्द था, बहुत बिल्कुल बेड पे आ गई थी, इतना परेशान थी, कोई घर में खाना बनाने वाला भी नहीं था। अब तो लेकिन बहू आ मैंने गई। योग नहीं छोड़ा स्वामी जी। हाँ। उस दिन से मैं चाहे कुछ भी जितना मेरे से होता था मैं करती थी, साथ साथ एलोपैथिक दवाई लेती थी। और स्वामी जी जिस दिन से मैं आपको 2 घंटे फॉलो करने लगी हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मेरी एलोपैथिक दवाई बंद हो गई है और दर्द भी गया। और यहाँ आने के बाद तो ये समझ लो आज तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को देख के तो नहीं चला गया? बिल्कुल, आपको देख के तो बिल्कुल ही चला गया स्वामी जी। ये दर्द और बीमारी मेरे से डरते हैं। हाँ जी। हाँ। स्वामी जी मेरे पति आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो 4 दिन यहाँ हमें लेकर के आए कि चलो तुम्हें ठीक करवा के लाता हूँ, लेकिन उनको यहाँ आते ही फीवर हो गया। उनसे प्लीज जरूर मिल लीजिए। मिल कोई बात ना, वो ऐसे कहते थे मैं तो स्वामी जी के साथ सुबह वॉक करूंगा चाहे तुम कुछ भी करना। ना बोले दौड़ते हैं स्वामी जी, वॉक नहीं करते। हाँ जी। सुबह स्वामी जी वो 3:30 बजे उठ जाते हैं और नहा धो करके आपके सामने बैठ जाते हैं और 7:30 बजे तक बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। आर्थराइटिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो पेडानिल गोल्ड ऑर्थोकिट नहीं खाया था? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, खाली 4 योग से महीने ठीक से हो कुछ गया। नहीं स्वामी जी। आयुर्वेद भी नहीं, एलोपैथी भी नहीं, सिर्फ मैं हल्दी मेथी सौंठ ले रही थी और कुछ भी नहीं। यहाँ आकर के थोड़ी बहुत दवाइयाँ शुरू की हैं वो ठीक। ठीक है, अब जरूरत ही नहीं है। स्वामी जी मेरे कान में आवाज आने लग गई, 2 महीने पहले कफ हो गया था, उस वजह वो नहीं जा रहा। हाँ, तो कान की ये इसके लिए जल नीति सूत्र नीति नशे करेंगे ना, ठीक हो जाएगी। हाँ जी। उसको देने दूसरी तगड़ी बहन भी बड़ी प्रणाम मुस्कुरा रही स्वामी है। ए मोटी मैया, तेरे को क्या फायदा हुआ? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। बहुत बहुत प्रणाम। अब मेरे पैरों से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था कि आपके दोनों घुटने को ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरी बेटी ने बताया नहीं, अपन रामदेव बाबा के पास चलेंगे और दोनों पैर सही हो जाएंगे। और मेरे 7 दिन में दोनों पैर इतनी मेरी बेटी की स्पीड से चल रहे हैं दोनों पैर मेरे। तू अपनी बेटी के साथ इधर चल के दिखा। पैरों में इतनी मोटी मैया तू कैसे चलती है? इधर भीतर से चल के आना। अरे ये तो सच में चलने लग गए। माइक में बोलिए। पैरों में ऐसी थी सूजन थी, ये देखो सर, पैर में बहुत सूजन थी, सूजन काला काला पड़ गया, लेग्स मेरा एकदम पूरी सूजन चली गई, पैर मेरी बेटी के जैसे मेरे लेग्स हो गए सर। अपनी बेटी से तो ना कर रही है। उसने मुझे बुलाया 7 दिन में। सर हम अभी जा रहे हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, भाजपा की सेक्रेटरी में, और अभी मैं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। हमारा तेरी बेटी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद देती बाबा जी को। तो बेटी ले आई और माँ की अब, लेकिन पतली और हो जाना। हम बोलते हैं, आप बोलिए चाय छोड़ दीजिए, पतले हो जाएं। जाओ आज मेरे को प्रॉमिस करके जाओ, चाय नहीं पियोगी। बोलो एकदम प्रॉमिस। तो छूट गई ना यहाँ तो। थैंक यू सर। देख नीचे। बिल्कुल, मैंने चाय नहीं पी है, मैंने अभी आगे नहीं पीऊंगी। बोल आगे नहीं पीऊंगी। नहीं पीऊंगी। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू। हाँ, पीना मत। ये तेरे को देखो दूसरी चाय दे देता हूँ।
ये वाली चाय पी लेने का भी इच्छा करे ना। अभी मैंने सर्वकल्प क्लॉथ, मैंने ये अभी 6 दिनों में सर्वकल्प क्लॉथ बोल के पिया है, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। और मैंने बाबा की पूरी दवाइयाँ ले ली हैं हैदराबाद ले जाने के लिए, और बहुत बहुत बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पैरों की सूजन चली गई, मेरा फैट 5 kg कम हुआ 6 दिन में। एक दिन में 1 किलो वेट के कम हुआ। मजबूत माता। थैंक यू सर। तो अपनी बेटी जैसी पतली भी हो जाएगी। बेटी भी मेरी पतली होने। थैंक यू बाबा जी। ये अपनी माँ को क्या अपनी जैसे सुंदर दिखाना चाहती है। हाँ, मैं एक बात बता, तू भी तो ऐसी होगी जब बच्चा हाँ। अब पुराने जमाने की बातें याद करके। 45? हाँ, एक्चुअली मेनोपॉज के बाद लोग ब्याह करा के मोटी क्यों हो जाते हैं? अच्छा, मैं इसीलिए मोटा नहीं हुआ। क्या हुआ, मैं ठीक है 45 थी। नहीं होता, ऐसे हंसी मजाक की बात है। लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद और बहुत तरह की दिक्कतें होती है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी, वापस हो जाओगी। थैंक यू। हाँ ठीक है। थैंक यू बाबा जी। नहीं, मैं प्रयागराज से हूँ बाबा जी। मेरी शादी प्रयागराज हुई है, बट मेरे मन में हमेशा एक चिंता रहती थी कि मेरी मम्मी चल नहीं पा रही है। मुझे बहुत ही दुख होता था सोच के कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। एंड फिर ऐसे प्लान किया कि नहीं मम्मी आप हैदराबाद से आना, मैं प्रयागराज से आऊंगी और हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। जी कोई नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू बाबा। भाई को चांदी हो रखी है उसकी, कोई नहीं, वो गिर गई थी उड़ गई, कोई नहीं, जवान लड़के है, कोई दिक्कत नहीं। बाबा जी तुमको क्या फायदा हुआ? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं तो आपकी कृपा ठीक हूँ, और सवेरे रोजाना भ्रामरी, उद्गीत और कपाल भाती, अनुलोम विलोम ये नियमित रूप से करता रहता हूँ। मैं तो ये पत्नी को इनको शुगर वगैरह, बीपी, हार्ट की ये तो ठीक हो गई। हाँ, तो इनको मैं लेकर के आया था। आपकी भी चांदी हो गई। हाँ हाँ जी, आपका आशीर्वाद है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 66 प्लस है। अब लोग बुजुर्ग लोग ना, लोग कहते थे बुढ़ापे का सहारा लड़का है, कुछ कहते थे लड़की ध्यान रखती है, जैसे गुड़िया ध्यान रख रही थी। बुढ़ापे का सहारा लड़का है, लड़की है, कुछ कहते थे लकड़ी। हमने एक कविता पढ़ी थी स्कूल में, बुढ़ापे का सहारा लकड़ी। लेकिन अब बुढ़ापे का सहारा क्या है? योग। और बुढ़ापे का सहारा सब, कुछ लोग बोलते थे स्वामी जी कहते हैं माँ बाप धरती के भगवान है और अपने छोड़े फिरता है। मैंने कहा मैंने सारे माँ बाप संभाल लिए। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ से हम संकल्पित होकर के जा रहे हैं कि अपने योगा को जो है ना और नियमित करेंगे। बहुत आशीर्वाद। ए मोतीलाल जी खड़ा हो। ओ बेटी दो उधर बैठी है। ये इसकी पत्नी मरने को हो गई थी, अब वो रोज जो है मेरे को देख देख करके खुश होती है। उसकी वो छूट गई दवाइयाँ और खुश हो रही है। क्या हाल है पत्नी का? ठीक है डॉक्टर मम्मी जी, बहुत पहले से ठीक हो रही है, और 10-15 दिन में मैं सोचता हूँ बहुत बढ़िया हो जाएगी। बहुत बढ़िया हो जाएगी। हाँ जी, चलने लग जाएगी। अभी चल नहीं रही है। वो 4-5 पर पड़ी रहती थी। पहले दिन में देखा उसको तो वो यंत्र मशीन इतनी लगी हुई, और फिर उसके बाद में से ऐसे निकली जैसे कोई भूतनी जगी हो। अभी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गए। जो मशीन लगाते थे हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं। मैंने बोला था ना लेके आजा। इसने बहुत सेवा की है। माने पिछले 15-20 सालों में हजारों क्या लाखों लोगों को भोजन कराया गया। बीकानेर वाले हैं ये। हाँ, खूब बढ़िया बढ़िया, सब आपका आशीर्वाद। बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाते हैं और पकवान खिलाते हैं, और जो भी कहीं 10, 20, 50, 100 लोगों को कहीं पर भी भोजन भेजना हो तुरंत भेज देते हैं। और बहुत श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, बहुत भक्ति से। बहुत आनंद आ रहा है मेरे को तो यहाँ पे। कहीं यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है। ना फिर वहाँ बीकानेर वाला कौन चलाएगा? अपना सब परिवार वाले अपना। फिर इसको हमारे अनुराग वार्षणे को जलेबी कौन खिलाएगा? तो ये मोतीलाल जी के, इनकी पत्नी का सच में बहुत बुरा हाल। अभी देख के आए अनुराग जी, अभी देख के आए। हाँ, वो ऑक्सीजन मशीन पे थी, बहुत बुरी हालत। हाँ एकदम मस्त है वो, बहुत खुश हो गई है। बहुत हंसती रहती है। अब तो बाहर किचन में खुद जाती है खाना खाने के लिए। और हाँ, नहीं तो घर में तो नरक बन गई थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैंने बोला था यहाँ आ जाओ, आ गए। चलो पीछे माताएं मुस्कुरा रही है, इनसे और पूछो क्या कह रही है। चलो बैठ। स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम। हम लोग काठमांडू से आए हैं, मैं और मेरी दोस्त। आपके बारे में बहुत सुन रखा था, और आपका जो शिविर लगा था काठमांडू में, उसमें भी हम लोग गए हुए थे। और
और इस बार योग ग्राम में आपका आशीर्वाद और योग के लिए आए हुए हैं। कैसा हम लग लोग रहा कल जी बहुत अच्छा लगा, हम लोग कल यहाँ पे आए हुए वैसे हैं। तो पहाड़ नेपाल बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ भी बहुत सुंदर है। जी बहुत सुंदर है। और कल आए और आज आपका दर्शन भी हुआ और आपके आशीर्वाद से हम लोग सामने बैठे हुए हैं इस योग ग्राम को, और आपको बहुत सत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। तो આવી રીતે કોઈ પણ રોગ હોય તમે મોટાથી મોટા રોગને મટાડી શકો છો શાનાથી? યોગથી। એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારે સાથે સાથે યોગ કરજો ને બધાને ઇન્સ્પિરેશન લઈ લઈને તમે પણ મોટિવેટ થશો અને બધા જ રોગોને મટાડી શકો છો। ઢેરને તમારે એકાદ દિવસ ખગડાવવાના છે તો બધા અમારા જ હતા। આપણે કેમ પેલા બસમાં બેસતા તો રૂમાલ મૂકીને જગ્યા કરી દેતા હતા અને અમે એમાં જગ્યા રાખી મૂકી છે। બધા જ લોકો ઈચ્છતા હોય છે કે કોઈ ચૂંટાયેલી વ્યક્તિ અથવા તો ભવિષ્યમાં ચૂંટાઈ શકે એવી વ્યક્તિ કોઈ હોય તો એ ચોક્કસપણે પાર્ટીમાં આવે, એટલા માટે એમણે આવું નિવેદન કર્યું છે। કોંગ્રેસ માટે મારા જે વસમાં છે ત્યાં સુધી અમે કોઈ કોંગ્રેસીઓને લેવા માટે તૈયાર નથી। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે ભાજપમાં કોણ થશે ઇન, કોણ થશે આઉટ।